অসীম নাথ। জন্ম 1975 সালের 17ই মার্চ দারাং জেলার সিপাঝাড় শহরে। বাবা সুরেন্দ্রমোহন দেবনাথ পেশায় লোকনাট্য শিল্পী হওয়ার সুবাদে খুব ছোটবেলা থেকেই থিয়েটারের সাথে বেড়ে ওঠার সৌভাগ্য হয়েছিল অসীম নাথের। শুধু তাই নয়, নাথ পরিবার বংশানুক্রমে লোকনাট্যের চর্চা ও যাপন করে এসেছেন। তাই লোকনাট্যের প্রবাহমান ধারা অন্তরে নিয়েই বড় হয়ে উঠেছেন অসীম। 6-7 বছর বয়স থেকে নাটক লেখার প্রতি ঝোঁক থাকলেও তা মঞ্চস্থ করবার তাগিদ অনুভব করেননি। কিন্তু পরিবারের সহযোগিতা আর অনুপ্রেরণায় চর্চা চলেছে অবিরাম। কলেজে পড়াকালীন 1991-92 সালে প্রথম ভিন্ন ধারার নাটকে অবতারণা। রিকা 13 নামে দল গঠন হয়। অগ্রজ সহপাঠী জয়ন্ত সাঁইকিয়ার তত্ত্বাবধানে শুরু হয় অন্য যাপন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিরম একঘেয়ে লাগছিল এই থিয়েটার চর্চা। সেই একই রকম অভিনয় শৈলী, গঠন বা আনুষঙ্গিকের ব্যবহার কেন যেন এক দমবন্ধ পরিস্থিতিতে আবদ্ধিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কিছু ভিন্ন করার স্বপ্নে 2003 সালের 1 সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা হয় সরসা, যার মূল ভিত্তিতে ছিল সোশ্যাল কমিটমেন্ট। 16 বছরের নিরলস চর্চায় তৈরি করেছেন বহু নাট্য, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাইফ ক্যানভাস, ছিন্নমূল, বিড়াল তপস্বী, হেভেন টু হেল প্রভৃতি। এবারের যাপনের কথায় অসীম নাথের সঙ্গে থাকবেন কথকেরা। অসীম নাথ। জন্ম 1975 সালের 17ই মার্চ দারাং জেলার সিপাঝাড় শহরে। বাবা সুরেন্দ্রমোহন দেবনাথ পেশায় লোকনাট্য শিল্পী হওয়ার সুবাদে খুব ছোটবেলা থেকেই থিয়েটারের সাথে বেড়ে ওঠার সৌভাগ্য হয়েছিল অসীম নাথের। শুধু তাই নয়, নাথ পরিবার বংশানুক্রমে লোকনাট্যের চর্চা ও যাপন করে এসেছেন। তাই লোকনাট্যের প্রবাহমান ধারা অন্তরে নিয়েই বড় হয়ে উঠেছেন অসীম। 6-7 বছর বয়স থেকে নাটক লেখার প্রতি ঝোঁক থাকলেও তা মঞ্চস্থ করবার তাগিদ অনুভব করেননি। কিন্তু পরিবারের সহযোগিতা আর অনুপ্রেরণায় চর্চা চলেছে অবিরাম। কলেজে পড়াকালীন 1991-92 সালে প্রথম ভিন্ন ধারার নাটকে অবতারণা। রিকা 13 নামে দল গঠন হয়। অগ্রজ সহপাঠী জয়ন্ত সাঁইকিয়ার তত্ত্বাবধানে শুরু হয় অন্য যাপন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিরম একঘেয়ে লাগছিল এই থিয়েটার চর্চা। সেই একই রকম অভিনয় শৈলী, গঠন বা আনুষঙ্গিকের ব্যবহার কেন যেন এক দমবন্ধ পরিস্থিতিতে আবদ্ধিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কিছু ভিন্ন বিট্টু ঠিক আছে? বিট্টু সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের তৃতীয় যাপনের কথা। আজ আমাদের মধ্যে আছেন, আমরা আজকে যাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করব তিনি হচ্ছেন আসামের অসীম নাথ। আপনারা সকলেই তাকে চেনেন। অসীম অনেকবার কলকাতায় কাজ করতে এসেছেন, তার নাটক দেখেছেন এবং ভীষণ ভালো নাটক করে। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যে কারণে আজকে অসীমের সাথে কথা বলছি, অসীমের জীবন যাপন প্রক্রিয়াটাই আমাদের প্রথাগত যে নাট্যকর্মীদের যে চলন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তো সেই জন্য আজ আমরা আপনাদের কাছে অসীমকে নিয়ে এসেছি। সরাসরি অসীমের থেকে আমরা জেনে নেব যে অসীম কেমন ভাবে তার থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেমন ভাবে তার যাপন ক্রিয়া, জীবন বেঁচে থাকার যে প্রক্রিয়া সেটা কিরকম। আমি প্রথমেই অসীম তোমার কাছে একটা
হ্যাঁ, বাংলায় অসুবিধা হবে? না, আমি বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারবে না। না না, তুমি হিন্দিতেই বলো, আমি বাংলায় বলি। না, আমার হিন্দিও ভালো নয়, আমি বাংলাও ভালো নয়। আহ, তুমি আমি তিনটে আমি ভাষা বাংলা মিলিয়ে বলো। পুরো আমি বাংলা পুরোতে বুঝতে পারি। আহ, বল- বল- ব- বলার আমাদের অল্প। আমাদের তুমি প্রথমে বলো যে তোমার থিয়েটারে আসা কিভাবে, মানে তোমার শৈশব কেমন ভাবে কেটেছে, তুমি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত কিভাবে হলে? दरअसल मेरा जो फैमिली है वो एक कल्चरल फैमिली था। तो पिताजी भी टीचर थे, लेकिन वो भी थिएटर आर्टिस्ट, फोक फोक थिएटर आर्टिस्ट था। और मेरा सारा परिवार मतलब ये थिएटर का साथ ही लगा हुआ है। तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतना अच्छा से नहीं। तो मैं कुछ ही साल रिपोर्टिंग किया, पेपर न्यूज़पेपर में काम किया। उसके बाद 2003 में मैंने पूरा थिएटर ज्वाइन कर लिया। मतलब हम थिएटर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और अलग काम नहीं करेंगे, थिएटर ही करेंगे। 2003 में मैंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और धीरे धीरे हम लोगों ने काम करने लगा। तो मेरा जो एरिया है वो पूरा विलेज एरिया है, गुवाहाटी से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक गांव है, सिपाजार बोल के। वो सेमी अर्बन जगह है। और मेरा जो गांव है वो पूरा एकदम रूरल, टोटल रूरल एरिया। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम लोगों ने काम करने शुरू किया। और जो मेरा जो सीनियर था, जो मेरा साथी था, वो मैंने छोड़ दिया सबको। और जो नया लोग है, जो नया थिएटर नया जो सीखने के लिए आते हैं, या नया एक ग्रुप बनाया, मतलब सब कुछ नया। मैं तो डायरेक्टर नहीं था पहले, मैं राइटर था या मैं ऑर्गेनाइजर था। मैं पूरा ऑर्गेनाइज करता था। मैंने दूसरा जो प्ले होता था, मैं पूरा मतलब पूरा फन या अरेंजमेंट प्रोडक्शन के लिए जो जो करना पड़ता है, सब मैं बैकग्राउंड में मैं काम किया था। लेकिन 2003 में मैंने पूरा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया थिएटर में। और ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोरसा। सोरसा वो मतलब एक्सरसाइज। तो वो हम लोगों ने धीरे धीरे काम करने लगा। और मैं ये सोचने लगा कि सब सब लोग तो एक तरफ थिएटर माने करने के लिए मैदान में खड़ा हुआ है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? मतलब एक जैसा थिएटर हुआ है, क्योंकि एनएसडी ने एक सिलेबस की तरफ, एक सिलेबस का अंदर ही एनएसडी ने माने ड्रामा का ट्रेनिंग देते थे, या वर्कशॉप। एनएसडी का एक स्टाइल होता है, मतलब एनएसडी का जो पास आउट है, एनएसडी का वर्कशॉप से जो निकला है, तो वो एक एक अलग रास्ता था। और असम 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 नॉट ओनली असम, पूरा इंडिया में उसका प्रभाव था। और एक है कि कलकत्ता से असम, कलकत्ता का जो नाटक है यात्रा दल, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। यात्रा, कलकत्ता का जो यात्रा, बंगाल का जो यात्रा है, उसका प्रभाव से हमारा यहाँ भ्राम्यमाण थिएटर, मोबाइल थिएटर, माने थिएटर इंडस्ट्री हो गया इधर। तो कलकत्ता का थिएटर का प्रभाव भी असम असम का जो थिएटर है, और कलकत्ता का थिएटर का भी प्रभाव बहुत था। तो मैंने सोचा कि तो वो उसके निकाल के हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा जो फोक थिएटर, मेरा जो फोक आर्ट फॉर्म, तो वो मैंने धीरे धीरे उसका ऊपर मैंने नजर डाला।
और एक नया थिएटर, एक नया आइडेंटिटी, थिएटर का एक नया आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने अभी तो कोशिश किया। और मेरा थिएटर इसलिए थोड़ा यूनिक है कि हम अलग तरीका से हम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने इसी लाइन पे ही हमने यात्रा शुरू किया या कंटिन्यू रहा है। আমি একটু আরেকবার পরিচয় করিয়ে দিই, তুমি সবাইকেই চেনো আমাদের। উপরে প্রশান্ত দা আছে, আপনারাও জানুন, প্রশান্ত ভট্টাচার্য আমাদের দলের কর্ণধারদের একজন। শিলাদিত্য বড়াল, কথক পারফর্মিং রেপার্টরির যারা পিলার তাদের মধ্যে একজন। শুভজিৎ মল্লিক। এবং আমরা এই কলেজে খুব বেশি পড়াশোনা করে উঠতে পারি না, আমাদের পড়াশোনাটা আমাদের হয়ে যে করে দেয় সে হচ্ছে রাজশ্রী। রাজশ্রী কোথায়? রাজশ্রী লেফট হয়ে গেছে নাকি? আর আমাদের টেকনিক্যাল কাজগুলো যে সামলাচ্ছে সে হচ্ছে সুমিত শ্রেষ্ঠা। সুমিতকে আমরা আজকে শেষে একবার দেখতে পাবো, তার মাঝখানে ও দেখা দেবে না, এরকমই একটা ব্যাপার আছে আমাদের। তো আমি বলবো যে শিলাদিত্য কোথায় কিছু জিজ্ঞেস করবে তোমাকে। শিলাদিত্য সরাসরি প্রশ্ন। আমার যেটা প্রশ্ন আপনার কাছে, আপনার শৈশব কেমন কেটেছিল? মানে আপনার আপনার সময়, আপনার শৈশবে খেলাধুলা কিরকম ছিল? हाँ, जो मैं तो पूरा रूरल एरिया में रहता था। जो ट्रेडिशनल जो प्ले गेम था वो मैदान पे या दौड़ना भागना वो भी तो है ही बचपन में। तो नया नया क्रिकेट आ गया है हमारा, माने नया नया मतलब जमाना आ गया। सुनील गावस्कर उसी टाइम पे सुनील गावस्कर था। तो हम लोगों ने भी क्रिकेट खेलने लगा। मेरा उसी टाइम में मेरा बचपन में ही पूरा सेट था, मतलब बैट पेट ऐसा सब सब कुछ था। लेकिन और मैंने मार्शल आर्ट किया, तो वो इम्पोर्टेंट है मेरा थिएटर का जर्नी का साथ। वो जो मार्शल आर्ट है वो मतलब कनेक्ट हो गया। क्लास 7 से मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया। तो वो जो मैंने सीखा है वो बाद में वो काम आया। मतलब मार्शल आर्ट और थिएटर में मेरा बहुत इजी हो गया। मतलब वो जो मोमेंट था, वो जो बॉडी लेंथ या बॉडी मेजरमेंट, वो जो बैलेंस, हाँ, तो वो जो बॉडी का ऊपर जो नियंत्रण था, तो वो सब कुछ मैंने मार्शल आर्ट से ही सीखा। तो प्ले से, मेरा मार्शल आर्ट से बहुत कुछ मुझे मिल गया। तो ऐसे ही इतना नहीं है। मैं जनरल जैसा जनरल लोग जैसे बड़ा होते हैं, जनरल लोग जैसे खेलते थे, जनरल लोग जैसे दौड़ता भागना या ये बर्ड का पीछे भागना, हाँ साइकिल चलाना। तो मतलब एक 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 मतलब इजी जिंदगी, एक एक इजी जिंदगी मैंने पार किया। और लेकिन उसी टाइम मेरा जो असम का पॉलिटिकल जो सिनेरियो या पॉलिटिकल जो प्रभाव था, वो भी मेरा फैमिली का एक बहुत बड़ा ये है। क्योंकि उसी टाइम जो अल्फा टेररिस्ट का जो या अल्फा ग्रुप का जो मोमेंट था वो पूरा हाई था। और गवर्नमेंट ने वो पूरा डोमिनेट करने के लिए वो बहुत फोर्स लगाया इंडियन आर्मी का। जो असम का जो माहौल था उसी टाइम, इंडियन आर्मी और उल्फा का बीच में जो संघर्ष होता था, वो भी एक क्लास 8 9 10 तक हम लोगों ने सफर किया। मतलब वो देखा है बहुत। तो उसका बीच में भी मेरा खेलना या पढ़ाई करना या जो थिएटर देखना है, थिएटर करना है, वो भी वो कविता भी लिखना है। उसी टाइम मैंने कविता बहुत सारा कविता लिखा है। और वो जो माने बिंदास जिंदगी जो है, जिंदगी पूरा जिंदगी बिताया।
অসীম, আমাদের সঙ্গে প্রশান্ত দা আছে। প্রশান্ত দা বোধহয় রাজনীতির সঙ্গে, মানে আমরা জানি যে তুমি যখন বড় হয়ে উঠছো, তোমার আসামের রাজনৈতিক মহল একেবারেই অন্যরকম ছিল। তো এই রাজনীতি নিয়ে বোধহয় প্রশান্ত দার কিছু প্রশ্ন আছে, যে তাই তো বুয়াইদা? মিউট মিউট মিউট। আপনার যৌবনের রাজনৈতিক জীবন কিরকম ছিল? মানে আপনি কি একটা রাজনীতি ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন হয়তো, কিন্তু একদম প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেছেন, বা আপনার ফ্যামিলিতে কি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির আনাগোনা ছিল? এইটা আমরা একটু জানতে চাই। हाँ, एक राजनीतिक माहौल था मेरा फैमिली में, कल्चरल और पॉलिटिकल एक माहौल था वो, लेकिन वो पूरा जातीयतावाद जो होता है। हाँ, तो मेरा जो आसाम के लिए जो मूवमेंट होता था, या तो उस मूवमेंट में मेरा फैमिली का जो एल्डर ब्रदर था, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। और अल्फा का मूवमेंट में भी मेरा एल्डर ब्रदर था। और माने एक पैरेलली हम लोगों का, लेकिन वो जो मतलब ये जो कोई कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से हमारा लगाव नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, लेकिन जो माहौल था वो जातीयतावाद असम के लेके जो मूवमेंट होता था, तो उसका ऊपर मेरा फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और बहुत लगाव था। मतलब तो इसी हिसाब से मैंने जो असम का हिस्ट्री, असम का कल्चर, असम का इकोनॉमी, तो असम असम का लेकर सब कुछ मैंने बचपन से ही मतलब नजर दिया। मतलब तो भूपेंद्र का गाना सुनना, या मेरा असमीज गाना, जो जो लीजेंड आदमी का असमीज गाना सुनना, या किताब पढ़ना, उसी रिलेटेड किताब पढ़ना, या हिस्ट्रियंस का साथ बात करना, क्या है असम में, असम में क्या क्या था, क्या क्या हो रहा है, क्या होगा आगे। तो बचपन से ही मैंने एक पॉलिटिकल मतलब एक्सरसाइज था मेरा 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 फैमिली में भी था और मेरा मन में भी था। तो इसलिए शायद मेरा जो प्ले है वो सब कुछ पॉलिटिकल प्ले है। ऐसा नहीं है कि मैं एम्यूजमेंट के लिए तो हम नहीं करते थे, हम नहीं माने करते हैं थिएटर। पूरा पॉलिटिकल एक इशू लेते हैं हम लोग, या ऐसा पॉलिटिकल इशू या माने ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भी ये है, या नहीं तो आसाम का जो एक समस्या है, आसाम का जो प्रॉब्लम है, उसका ऊपर भी हम वर्क करते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज हम उठाते हैं और वो भी उसका ऊपर हम वर्क करते हैं। তোমার व्यक्तिगत जीवन, इंडिविजुअल लाइफ जो है, उसके साथ थिएटर का कुछ संबंध क्या है? ये सब लेकर शुभजीत का क्वेश्चन है। शुभजीत। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर, आपका पर्सनल लाइफ में आपका थिएटर का क्या प्रभाव है? हाँ, मेरा पर्सनल लाइफ मतलब पहले बोला कि मैंने एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो जो फैमिली कल्चरली ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो उसके बाद लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस था। मेरा पिताजी नौकरी करते थे और थिएटर भी करते थे। हेलो हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, मेरा पिताजी नौकरी भी करते थे और थिएटर भी करते थे। फिर भी माने फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो सुने दे रहा है? हेलो।
हाँ हाँ, दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बोलिए। ओके ओके ओके। तो इसीलिए इसीलिए एक एक मन में संदेह था, जो फैमिली का मेंबर सब लोगों का मन में एक संदेह था, लेकिन कि अगर ये थिएटर में घुस जाएगा, प्रोफेशनली वो थिएटर में घुस जाएगा, तो वो फाइनेंशियली क्राइसिस में चला जाएगा। लेकिन मेरा जो मन है, तो मैंने बाकी सारा काम छोड़ दिया। मैंने नौकरी भी छोड़ दिया, प्राइवेट नौकरी या न्यूज़पेपर मैंने छोड़ दिया। गुवाहाटी में मैंने न्यूज़पेपर में काम किया था, वो भी छोड़ दिया। छोड़ के मैंने एक एक पन लिया है कि हम थिएटर करेंगे और उसी से हम जिंदगी चला लेंगे। तो इतना ये लिंक नहीं है, इतना ये मतलब कम्युनिकेशन नहीं है। फिर भी मैंने ट्राई किया कि हम थिएटर ही करेंगे और थिएटर से ही हम प्रोफेशनली अर्न करेंगे, और हमारा जिंदगी थिएटर और प्रोफेशनली माने थिएटर प्रोफेशनली हमने घुस गया। तो पर्सनली मैं जिद्दी था, माने हाँ हम यही करेंगे बस। जिंदगी का शायद मैंने अगर दूसरा काम पे चला जाता था, लेकिन हमने नहीं गया। तो यही हम सोच लिया कि हाँ नहीं, हम पूरा यही काम करेंगे, और इसी से ही हम एक आइडेंटिटी खड़ा करेंगे, इसी से ही हम एक फन क्रिएट करेंगे या अर्न करेंगे, खाएंगे, और हम थिएटर भी करेंगे। और जो सोशल इशू, जो पॉलिटिकल इशू, जो सोशली हम बोलना चाहते थे, क्योंकि हम तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसलिए हम थिएटर से ही हमने वो आवाज खड़ा किया, और अभी तक वही वही चलता रहा। सर, हाँ। आपके विचार में एक नाट्यकर्मी का जीवन या जीवन धारण पद्धति, जो लाइफस्टाइल होता है, वो क्या होना चाहिए? अच्छा, हाँ, वो तो बहुत बड़ा विषय है। माने मान लीजिए आप थिएटर में जो अंगिक होता है, भाषिक होता है, हाँ, और सात्विक भी होता है, हत्विक, है ना। तो वो जो सात्विक होता है, जो सात्विक अभिनय है, भाव है, तो वो क्या है? अगर हम सात्विक पे चला जाएंगे तो वो अलग विषय हो जाएगा। माने एक आदमी, एक एक्टर का लाइफस्टाइल होता है ना, वो बहुत दूर चला जाता है। मतलब एक सन्यासी जैसा होना चाहिए सात्विक अभिनय के लिए, क्योंकि वो तो अलग टाइप का एक, ये अलग एक दुनिया है अभिनय, जो सात्विक अभिनय है। तो उस पे चला जाने के लिए तो पूरा एक समर्पित मन होना चाहिए, एक समर्पित, एक मतलब त्यागी, समझ समझ गया ना। सत्य मतलब एक त्याग, एक त्याग मतलब समर्पित, एक नाटक का ऊपर, अभिनय का ऊपर एक समर्पित जीवन होना चाहिए, या सात्विक अभिनय के लिए। बाकी तो जो अभी जो एक्टिंग या जो अभी जो माहौल है, वो तो नहीं है वो, क्योंकि मोबाइल फोन आ गया, या प्रोफेशनलिज्म घुस गया, या बहुत सारा ये पॉलिटिक्स घुस गया। थिएटर पॉलिटिक्स माने सोशल पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन थिएटर पॉलिटिक्स, ये कितना आ गया, सैलरी ग्रांट कितना आएगा, प्रोडक्शन ग्रांट कितना आएगा, हमारा पैसा क्यों नहीं आया, तो इधर करेंगे, वो करेंगे, उधर जाएंगे। ये जो माने एक एक्टर का जो ब्रेन में जो ये जो भावना है ना, तो वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। माने जो थिएटर पॉलिटिक्स, वो डायरेक्टर कितना ये प्ले किया, उठाया है, क्या करेंगे, कितना पैसा ये एक्सेस लिया है, कितना लिया है, मतलब ये जो माहौल है ना, एक एक्टर का,
और साथी के साथ करना है, अभी आया आया सैलरी ग्राम आया, अभी तो आया नहीं आया, जो वो एक्टर की है। एक लिए, लेकिन प्योर या एक अभिनेता के लिए वो नहीं, वो नहीं होता है वो, मतलब एक एक समर्पित। मैं ये नहीं बोला कि वो खराब है, ये मैंने नहीं बोला। एक एक सात्विक अभिनय, एक अभिनेता के लिए, एक ओरिजिनल सात्विक अभिनेता के लिए उनको उनको कोई मतलब नहीं है। कोई पेड़ से बात बोलेगा, कोई आकाश का साथ बात करेगा, या नेचुरल जो जो का तो ये जो है ना, वो एक सात्विक सर अभिनय के थोड़ा लिए। सुनने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लाउड बोल सकेंगे आप थोड़ा? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी सुन रहा है? हेलो। हाँ हाँ तो सर एकदम ठीक। माने, हाँ, ये अभिनेता का जो अभी जो माहौल है, वो एक अभिनेता को लाइफस्टाइल में थिएटर पॉलिटिक्स नहीं घुसना चाहिए दिमाग में, एकदम फ्री मेरा ख्याल से। वो गलत भी हो सकता है। और एक समर्पित भावना, एक समर्पित जीवन, कुछ आने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए, वो एक समर्पित जीवन होना चाहिए मेरा ख्याल से। और जो अभी जो माहौल है, जो थियोरेटिक लेके जो एक्टर चल रहा है कि मेरा ग्रुप, ये ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या हो रहा है, उस ग्रुप से वो गया है, वो बीआरएम मिला है, या वो फेस्टिवल, कितना फेस्टिवल निकला है, वो जो ये वो डायरेक्ट एक डायरेक्टर का है, लेकिन ज्यादा ज्यादा एक वो थिएटर पॉलिटिक्स वो डायरेक्शन में है। असीम, से वो ठीक नहीं है। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ आ- हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। राजर्षि, राजर्षि बोले, कुछ पूछेंगे आपको। राजर्षि, हाँ ठीक है। राजर्षि, सर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ सर, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, आप बहुत सारे वर्कशॉप में एज अ फैसिलिटेटर, एज अ ट्रेनर आप काम करते हैं। तो एक एक्टर के लिए एक ऐसी वर्कशॉप का इम्पोर्टेंस कौन सी जगह पे हो सकता है, ये आपका ख्याल से क्या है? एक एक्टर के लिए वर्कशॉप का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है? मतलब एक एक एक्टर के इम्पोर्ट माने वर्कशॉप का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और एक वर्कशॉप का एक एक्टर के लिए ट्रेनिंग का जरूरी है। कि हम कोई रास्ता पे चला जाएंगे, एक आम रास्ता हम चला जाएंगे, पे रहेंगे, तो एक ट्रेनिंग के लिए एक हम एक रास्ता जाएंगे कि हम कौन सा रास्ते जाएंगे, जो रास्ते वो ठीक है या कोई दूसरा है। मतलब एक ट्रेनिंग से एक्टर को दिमाग खोल, अगर एक ट्रेनिंग है तो जो रास्ता है वो रहेगा, उतना का रास्ता है या फिजिक्स जो रास्ता है का जो है नहीं कर पाएंगे। जो किया वो इतना जरूर वो नहीं है, वो बोला तो उसी का भी दिमाग में खराब लगता है। अच्छा, उस पर उसका
तीसरा हम एक ट्रेनिंग की इस वर्कशॉप बहुत जरूरी है मेरा ख्याल से। और हम सर डिस्टर्ब करता हूँ सर। हेलो हेलो सर। सर शायद थोड़ा ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का। थोड़ा खिड़की के पास जाने में शायद नेटवर्क अच्छा मिलेगा। अच्छा ऐसा। हाँ हाँ, अभी ठीक है, एकदम ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि एक एक ट्रेनिंग का बहुत जरूरी है एक एक एक्टर के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो ट्रेनिंग से जो लास्ट है वो शुरू भी हो सकता है। वो शुरू भी दरअसल वो शुरू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और दिमाग में हर सारा रास्ता खोलना चाहिए। जो डोर है या खिड़की है तो वो सारा दिमाग का जो खिड़की है, दिमाग का जो डोर है वो खुल जाएगा। तो आप अपना जो रास्ता है उस पे जाना चाहिए एक्टर को। जो डायरेक्टर या जो जो फैकल्टी ने जो ट्रेनर ने सिखाया वो छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ट्रेनिंग का बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। অসীম, हाँ हाँ কি minute? হ্যাঁ, हाँ सुन বলছি रहा। যে তুমি তো একজন খুব ভালো ডিজাইনার। हम्म। डिजाइनर डिजाइनर सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ 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 শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, তো তোমার নাটকের বৈশিষ্ট্যটা কোন দিকে রাখবে, মানে অ্যাজ এ প্লে রাইটারের দিক থেকে, নাকি পলিটিক্যাল সাবজেক্টের দিক থেকে, নাকি ডিজাইনের দিক থেকে, কোন দিকে তুমি তোমার নাটককে একটু এগিয়ে রাখবে? दरअसल पहले तो मेरा दिमाग में ये आता है सब्जेक्ट। मेरा दिमाग में सब्जेक्ट आते हैं, एक कंटेंट आते हैं। उसके बाद वो कंटेंट का ऊपर हम एक टोटल सारा ग्रुप को बुला के हम एक मेंटल वर्क करते हैं, सब लोग मिलजुल करके। उसके बाद हम डिजाइन सोचते हैं कि कैसा होगा ये, माने ये हम कैसे ले जाएंगे ऑडियंस की तरह। और मेरा दिमाग में ये आते हैं कि मैं तो असमिया लैंग्वेज में करता हूँ थिएटर। तो असमिया में अगर हम बोलेंगे तो कलकत्ता का लोग नहीं समझ पाएंगे या कर्नाटक का लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए डिजाइन उसी हिसाब से हम तैयार करते हैं कि अगर हम प्ले करेंगे तो हैदराबाद का लोगों को अभी मालूम पड़ जाएंगे कि हम क्या बोल प्ले में हम क्या दिखा रहे हैं। तो इसीलिए पहले हम कंटेंट लेते हैं। ये यूनिवर्सल भी हो सकता है, इंडियन की कंटेक्स्ट भी हो सकता है, या ज्यादा असम की जो प्रॉब्लम्स है सोशियो इकोनॉमी का, पॉलिटिकल का जो प्रॉब्लम है उसका ऊपर हम काम करते हैं। और उसके बाद हम डिजाइन सोचते हैं कि हम कैसे ले जाएंगे वो प्ले। तो पहले कंटेंट। आपका म्यूट हो रहा है। মিউটটা খোল, মিউটটা খোল। মিউটটা উঠছে না। হ্যাঁ, এবার উঠেছে। হ্যাঁ, আমাদের একটা অডিয়েন্স থেকে প্রশ্ন করেছে যে এই মুহূর্তে আসামের মহল কেমন, এই কোভিড-19 এর পরবর্তীকালে আসামের মহল কেমন এবং থিয়েটারের দলগুলোর অবস্থা কি? जो लोग थिएटर का, तो उनका माहौल बहुत खराब है। अभी तो पूरा खराब है। सब लोगों का एक ही हालत हुआ है। और असम गवर्नमेंट का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है वो थिएटर का ऊपर कोई मतलब नहीं सोचते हैं।
और जो बड़ा ग्रुप है, जो छोटा ग्रुप है, सबका ऊपर मतलब सबका ऊपर प्रभाव है, खराब हुआ है। फाइनेंशियल बहुत दिक्कत आ रहा है सब लोगों का सेम। तो गवर्नमेंट का रोल भी अच्छा नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या असम गवर्नमेंट हो। तो असम, मैंने सुना है कि कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ग्रुप को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट किया, सुना है। तो लेकिन असम में तो नहीं। असम में अगर असम में इंफॉर्मेशन भी नहीं है कौन कौन लोग थिएटर कर रहा है। बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो लोग थोड़ा, मेरा ग्रुप का भी लड़का सिनेमा में घुस गया, अभी सिनेमा में घुस गया या कैमरा में घुस गया। तो थिएटर, बाकी सब लोग सब कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल मीटिंग भी हो रहा है या रैली भी हो रहा है, लेकिन हॉल नहीं खुला है या थिएटर माहौल नहीं है। मिनिमम एक दो प्ले हो रहा है जो इंटीमेट प्ले है, लेकिन माहौल अच्छा नहीं है, खराब है। फाइनेंशियल दिक्कत हुआ है सब लोगों का। और दूसरा रास्ता पे चला गया, कोई माने फूड का दुकान दिया है, कोई लड़का लोग या ये अमेज़न का ये बॉय बना है, या कोई लोग सब्जी का व्यापार कर रहा है। ऐसा हो रहा है, अच्छा नहीं है। ওই যে প্রশ্ন করেছিলেন সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। সৌরভ আরো একটা কোশ্চেন করছে, তাহলে এই মুহূর্তে আসামের নাট্যকর্মীরা কি ভাবছে থিয়েটার নিয়ে? अब अभी अभी स्टेबल है। अभी अभी उन लोग हमारा दिमाग में या सब लोगों का दिमाग में यही है। तो एक माने अच्छा दिन होगा, अच्छा दिन आएगा वो अभी तक तो आया नहीं अच्छा दिन का इंतजार में है। आप लोगों ने तो देखा ही है कलकत्ता कोशिश का जो तो अच्छा दिन कब आएगा, तो इसी इंतजार में है हम लोग শিলাদিত্য শিলাদিত্য বোধহয় কিছু তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে ডিজাইন নিয়ে, কারণ ওর টেকনিক্যাল বিষয়গুলো ভীষণ নিয়ে ওর ইন্টারেস্ট। তো ও তো ভাবছিল একবার তোমার কাছে যাবে ওয়ার্কশপ করতে টেকনিক্যাল अच्छा। বিষয়গুলো নিয়ে। তো ওকে ও কিছু জিজ্ঞেস हाँ করবে তোমাকে। শিলাদিত্য, हाँ, म्यूटा खोले दिन, म्यूटा खोले दिन। এবার তো মিউটটা খোলো। সরি সরি স্যার। স্যার কখনো কি এরকম হয়েছে, ধরুন আপনি কোনো সাবজেক্ট নিয়ে একটা নাটক তৈরি করছেন, একটা দীর্ঘ একটা রিহার্সাল প্রসেস চলছে, তারপরে মনে হয়েছে যে না, এই এই নাটকটা দরকারই হয়তো নেই, এরকম কখনো কি স্যার মনে আপনার সঙ্গে হয়েছে এরকম কিছু? माने वो एक्चुअली वैल्यू नहीं है, ऐसा 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 कि सब कुछ हो गया, मतलब बाद में देखा है नहीं ठीक नहीं है, ऐसा ये बोला है। हाँ, उसका बोलने का मतलब ये था क्या, पूरा नाटक रेडी हो गया, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगा कि इसका कोई जरूरत ही नहीं होता, कुछ और भी कर सकते थे, कोई और भी कंटेंट होता जो अभी बहुत बहुत प्रासंगिक होगा, जो बहुत बहुत अच्छा जाए, अभी जो सिचुएशन को बयां करेगा। ऐसा कभी सिचुएशन में आप आए हैं कभी? हाँ, एक बार हुआ है, जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पूरा प्ले खड़ा कर दिया एक बार, माने लगभग 80% हमारा काम खत्म। उसके बाद एक मेरा दोस्त आया, आके रिहर्सल देखा और बोला कि अरे ये तो एनिमल फार्म है, एनिमल फार्म तुमने किया है। मैंने बोला मैंने तो पढ़ा नहीं एनिमल फार्म, जो फेमस नोवेल है एनिमल फार्म, लेकिन मैंने पूरा एनिमल फार्म खड़ा कर दिया, मतलब एकदम मिलजुल एनिमल फार्म का टॉपिक से। और
बोला है कि उन्होंने बोला कि एनिमल फार्म से पूरा तुम्हारा जो प्ले है वो मिलजुल है। तो मैंने उसी टाइम मैंने पढ़ा नहीं एनिमल फार्म, तो सोचने लगा कि नहीं ठीक है, अगर किसी का प्रभाव है वो बोलेगा कि मैंने मैंने चोरी किया, मैंने नकल किया, तो इसलिए हमने वो प्ले ड्रॉप कर दिया। तो वो यही वही एक बार हुआ है। लेकिन हम हमारा जो प्ले का जो प्रोसेस है ना, तो वो प्रोसेस से हम लोग प्ले को ड्रॉप करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक प्ले लेते हैं और सब लोगों का एक पार्टिसिपेशन होता है उधर एक्टर एक्टर का, माने प्ले राइट सब लोग का सजेशन, सब लोगों का सजेशन, सब लोगों का आइडिया, सब लोगों का फ्रीडम देते हैं हम लोग कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा आइडिया क्या है, जो पॉलिटिकल हम बात करते हैं या जो टॉपिक का ऊपर हम बात करते हैं उसका उसका ऊपर हम 1000 क्वेश्चन करते हैं एक्टर को, या एक्टर ने भी मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा अगर हम ये करेंगे तो अगर ये करेंगे तो ये होगा। तो ऐसा हम बहुत सारा क्वेश्चन का एक डिस्कशन, एक नहीं बहुत सारा डिस्कशन का बाद ही प्ले बनते हैं। तो इसलिए वो प्ले बहुत माने सब लोगों का होता है। ये मेरा मैं सिर्फ হ্যাঁ, রাজশ্রী অডিয়েন্স থেকেও প্রিয়াঙ্কা দাস বৈরাগ্য প্রশ্ন বলছে যে সরসা দল, নাট্য দল, তো সেই নিয়ে ও একটু জানতে চায়। আর আমাদেরও কোশ্চেনের মধ্যে আছে, রাজশ্রী প্রশ্নটা করবে। রাজশ্রী, सर सर मेरा जो क्वेश्चन था एक्चुअली, आपने जो नया ग्रुप फॉर्म करके आप कुछ देर पहले आपने खुद ही बोला कि पहले आप एज अ बैक स्टेज वर्कर या ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर ऐसा काम करते थे, फिर आपने डायरेक्शन में आया। तो सर ये अलग से एक थिएटर ग्रुप का इसका क्या जरूरत था? बहुत सारे तो थिएटर है, तो अलग एक ग्रुप बनाने का क्या जरूरत था और आपका इसके लिए मोटिवेशन क्या था? अच्छा अच्छा, हाँ। तो मेरा मन में भी बाद में आया ये क्वेश्चन कि मैंने क्यों खड़ा किया। तो अगर हम खड़ा नहीं करेंगे तो एक ही ग्रुप रहेगा। अगर मान लीजिए नांदीकार रुद्रसेन गुप्ता जी, अगर वही डायरेक्टर होगा, वही नंदीकार होगा कलकत्ता में, और नहीं ग्रुप और नहीं होगा, तो वो ठीक नहीं है। मतलब एक एक हाँ, एक बम था, किसी ने बम जला दिया, उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ और जहां जहां गिरा उस पे फिर एक माने एक पेड़ निकला। वो पेड़ का जो फॉल होता है ना, उसका ऊपर फिर और एक पेड़ हुआ और एक पेड़ हुआ, इसी से ही तो जंगल हुआ है। माने अगर जंगल नहीं होगा तो ब्यूटी नहीं है। माने मेरा कहने का मतलब ये है, अगर एक दल एक डायरेक्टर एक दल होगा तो एक मोनोपोली होगा, एक मतलब एक ही शोज होगा, एक ही स्टाइल होगा, एक ही माने डिस्कशन होगा, एक बोरिंग माहौल होगा। अगर अगर मेरा ग्रुप से कोई एक बंदा निकल के कोई नया ग्रुप करेगा तो वो पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका पास फ्रीडम है, उनका पास मेरा से भी बेहतर कोई आइडिया थिएटर हो सकता है, और दुनिया के लिए भी वो अच्छा मैसेज भी हो सकता है, अच्छा भी काम हो सकता है। मतलब ये नहीं कि मेरा मेरा ग्रुप से कोई लड़का चला गया तो वो खराब है, वो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक नया नया काम होना चाहिए, नया नया आइडिया होना चाहिए, नया नया थिएटर का नया नया जो रास्ता खोलना चाहिए। तो मेरा ग्रुप में जो लड़का थे, सिर्फ मेरा दबाव
होगा, मेरा डोमिनेशन होगा। तो वो डोमिनेशन से निकाल के कोई नया, अगर कोई चित्र बनाएगा, कोई नया पेंटिंग करेगा तो क्या खराब है? तो वो होना चाहिए। वो माने एक, एक से दो, दो से चार, चार से दस, दस से बीस, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो नहीं तो एक होगा, ये रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता या पूर्वी गुह, एक ही आदमी होगा। तो माने एक होना नहीं चाहिए, हजारों होना चाहिए, हजार डायरेक्टर, हजार एक्टर, हजार हजार लोग थिएटर से जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए ग्रुप, नया नया ग्रुप बनना चाहिए, नया नया जो थिंकिंग है, नया नया आइडिया है, नया नया प्रेजेंटेशन है, नया नया स्टाइल होगा, माने नया कंटेंट आएगा। तो उनका जो संघर्ष होगा ब्रेन में, सोसाइटी में, अच्छा अच्छा मैसेज जाएगा मेरे ख्याल से। गलत भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए ये। ठीक है। অসীম, একটু তোমার থিয়েটারের একটু প্রসেস নিয়ে একটু বলো, যে কিভাবে তুমি একটা নাটক তৈরি করো, মানে নাটক স্ক্রিপ্ট থেকে নাট্য হয়ে ওঠে, তার যে একটা প্রসেস আছে না, সেই প্রসেসটা নিয়ে কিছুটা আমাদের একটু বলো। हाँ, दरअसल मेरा पहले तो मेरा दिमाग में ही आता है जो एक सोशल या पॉलिटिकल इशू, वो दिमाग में, मेरा दिमाग में आ जाता है कि ये जो अन्याय हो रहा है या जो इलीगल हो रहा है या जो गलत हो रहा है, तो वो दिमाग में एक प्रेशर बनता है ना। वो प्रेशर बहुत सारा, बहुत दिन या 2 साल, 1 साल, या नहीं तो कभी कभी ये दब जाता है, नया नया इश्यूज आता है दिमाग में। तो वो सारा दिमाग में चलता रहता था। ये वो नेचुरल है, वो प्ले के लिए नहीं, ऐसा ही, ऐसा ही। माने जो आसपास का जो माहौल है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो सोशल सिनेरियो है, वो उसका एक दिमाग में प्रेशर होता है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा रास्ता यही है। हम तो माने उल्फा में हम नहीं जाएंगे, या कोई स्टूडेंट मोमेंट भी नहीं है, कोई मतलब या क्या वो मिছিল में हम नहीं जाते। तो हम थिएटर ही करते हैं। तो वो सोचा, वो आर्टिस्टिकली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इसीलिए हम पहले वो इशू हम लेते हैं और उनका जो वैल्यू है, वो वैल्यू हम निकालते हैं कि अगर ये वो वैल्यू सिर्फ आसाम के लिए या कलकत्ता के लिए या बंगाल के लिए या पूरा हिंदुस्तान या ऑल वर्ल्ड के लिए वो वैल्यू है कि नहीं, प्रोफेशनल वैल्यू या सोशल वैल्यू है कि नहीं। अगर सोशल वैल्यू है तो उस पर हम डिसीजन लेते हैं कि ये हम प्ले करेंगे। तो अगर सोशल वैल्यू है तो हम डिसीजन लेंगे कि हम ये प्ले करेंगे। लेकिन ये भी सोचना है कि ये प्रोफेशनल वैल्यू है कि नहीं, ये मार्केटिंग वैल्यू है कि नहीं प्ले का, वो भी हम सोचते हैं पैरेलली। अगर दोनों वैल्यू है, सोशल वैल्यू भी है, प्रोफेशनल वैल्यू भी है, तो हम डिसीजन लेते हैं कि इसका ऊपर हम काम करेंगे। तो पहले हम 2 या 3 लोगों को बुलाते हैं, 2 या 3 आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उनका साथ ऐसे ही हम बात करते थे। प्ले का बारे में हम नहीं बोलते थे। तो वो जो इशू है, जो जो सब्जेक्ट है, उसका ऊपर जो अड्डा होता है ना, जो टेबल टॉक होता है, खाने का या बैठने का जो अड्डा होता है, उसका उसी टाइम हम बात करते हैं कि क्या होगा देश का, ऐसा ऐसा है, ये है, वो हो रहा है, वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो अगर हम वो जो एक्टर है उनका ऊपर हम पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि वो इशू कैसे लेते हैं, ये रेस्पॉन्स क्या है। अगर वो उन लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा है तो मैं सोचता हूँ कि सब लोगों का ये रेस्पॉन्स अच्छा होगा। तो धीरे धीरे हम
प्ले का बारे में बोलते हैं कि हम क्या इसका ऊपर नाटक कर सकते हैं, राय लेते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, या नहीं नहीं ऐसा ऐसा होने से ये नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। ऐसा ऐसा हम दो तीन का साथ बात करते हैं, मेरा जो हार्डकोर या मेरा जो विश्वसनीय है। उसके बाद हम फिर एक्सटेंड करते हैं ग्रुप से साथ, उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंड करते जाते हैं। और हम रिपीटेडली बात करते थे कि ये है वो है ऐसा है। उसके बाद करते 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 सबका दिमाग में वो टॉपिक घुस जाता है। तो धीरे धीरे वो उनका हम डिजाइन भी डाल देते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो ऐसे करते करते उसका रिलेटेड प्ले का रिलेटेड म्यूजिक, प्ले का रिलेटेड एक्सरसाइज, प्ले का रिलेटेड कोई फिल्म, प्ले का रिलेटेड कोई चीज, ऐसा सब कुछ हम करते हैं। और एक्सरसाइज भी पैरेलली हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। और जो एक्सरसाइज प्ले का काम पे आते हैं वो एक्सरसाइज माने स्पेशल एक्सरसाइज जो प्ले का काम आएगा, प्ले में काम आएगा, वही एक्सरसाइज हम करते हैं। या इनोवेटिव हम मोमेंट खड़ा करते हैं, प्ले में हम नहीं जाते थे पहले। माने मोमेंट हम खड़ा करते हैं कि ऐसा चलो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करने से क्या होगा। ऐसे करते 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 धीरे धीरे हमारा मोमेंट भी खड़ा होता है, डिजाइन भी खड़ा होता है, और प्ले भी, कंस्ट्रक्शन, सब लोगों का मिलजुल करके एक मिलजुल का कारोबार है हमारा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टर है वहाँ कुर्सी पर बैठते हैं और डायरेक्शन देते, तुम इधर जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे खड़ा हो जाओ, ऐसे बोलो। ये हम नहीं, मेरा प्रोसेस में नहीं है। मेरा प्रोसेस में हम सब लोग एक साथ काम करते हैं, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, सब लोगों का सजेशन लेते हैं, सब लोगों का फ्रीडम देते हैं हम लोग। और एक्सेप्ट करते करते हम लोग सब लोग एक मिलजुल ग्रुप परफॉर्मेंस, सब लोगों का पार्टिसिपेट होता है उसको प्ले में। धीरे धीरे बन जाता है। और बाद में देखते हैं, एक बार प्ले हो गया उसके बाद हम फिर डिस्कशन में बैठते हैं कि तो क्या ठीक है ये प्ले, कुछ गड़बड़ है क्या। सो एक्टर, मैं तो एक्टर का राय ही लेता हूँ, ऑडियंस का नहीं। एक्टर का है, वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, उनका दिमाग में आया कि नहीं सब्जेक्ट। अगर वो आया, वो फ्लेक्सिबल है, वो अगर टॉपिक पूरा हार्ट एंड सोल ऑब्जर्व किया, देन वो प्ले डिसीजन लेने रहेगा। প্রশান্ত দা বোধহয় ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করছিল তোমাকে। প্রশান্ত দা, বুবাই দা। হ্যাঁ, আপনার যে স্টাইল, আপনার যে চিন্তা, আপনি যে এতক্ষণ ধরে আপনি যেভাবে নাটক বাছেন, যেভাবে নাটকটাকে প্রডিউস করেন, যেভাবে আপনি আপনার দলের এই মাত্র যেটা বললেন যে সবাইকে নিয়ে, সবার সঙ্গে মিশিয়ে, সবার আইডিয়া নিয়ে, নিজের আইডিয়া দিয়ে কিভাবে মিলেমিশে কাজটা করছে, তো আপনার একটা স্টাইল কিন্তু অলরেডি এস্টাবলিশড। তো আপনার এই রকম কোনো ভাবনা আছে কি যে এই স্টাইলের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনি তৈরি করে গেছেন বা চান, নাকি চান না, নাকি পুরোটাই খোলা আছে, আপনার এখান থেকে তার রসটা নিয়ে সে যেভাবে খুশি করতে পারে, মানে আপনার ফিউচার, আপনার নাট্যের ফিউচার আপনি কিভাবে ভাবছেন? मेरा पहले से ये मन है कि हम एक दूसरा रास्ता पे जाएंगे। हमारा रास्ता है, जो लोग करते उस रास्ते पे हम नहीं जाएंगे। हाँ, प्रभाव हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, लेकिन हम दूसरा कोई एक नया रास्ता हम ढूंढेंगे और नया रास्ता से हम जाएंगे। हम
लेकिन हम प्रेशर नहीं डालते किसी को कि मेरा रास्ता अपना लो, ये रास्ता कायम रहो, मेरा नाम इतिहास में लिखा रहो, या मेरा ऐसा मेरा मेरा मानना नहीं है। हमने मेरा जो दिल खुशी है, मेरा मेरा जो खुश है, मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ। अगर मेरा मैं किसी को डोमिनेशन हम नहीं करते, मतलब ये बरकरार रखना जरूरी नहीं है। हमने किया, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है, अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा नहीं है तो नहीं है। माने हम ऐसा नहीं कि हमने ऐसा नहीं सोचते कि हम कोई बड़ा काम किया या कोई नया एकदम एकदम कुछ नया किया, ऐसा नहीं। मेरा जो दिल और दिमाग जो इंडिकेट करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, मैं खुशी हूँ। और अगर किसी का मेरा काम से खुशी है तो जोड़ जाइए, नहीं है तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ लीजिए। माने एक फ्रेम में हम नहीं डालने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं कि चलो हमारा ऐसा ही करना है मेरा। लेकिन मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो ग्रुप में जो लोग आता है, मेरा थिंकिंग से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ या मेरा खुद का एक स्टाइल है। अगर कोई आपका ग्रुप का ही कोई लड़का है तो हम मेरा स्टाइल पे ही घुसना पड़ेगा। वो निकाल करके अगर मेरा एलिमेंट या आपका एलिमेंट, बंगाल का थिएटर का एलिमेंट या कर्नाटक का थिएटर का एलिमेंट या केरला का कलरीपट्टनम का कोई एलिमेंट लेके कोई अगर कोई एक कई नया चीज वो अगर रिसर्च करके खड़ा करेगा तो कोई खराब बात नहीं है, तो वो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा फॉर्म लेना जरूरी है। अगर किसी का अच्छा लग रहा है ले लो भाई, अगर नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दीजिए, हम मर जाएंगे ऐसे ही। হ্যাঁ সেই তবে আমরা বলেওছি তুমি আর একবার তোমার নাটকগুলো মানে যে যে নাটকগুলো তুমি সারা ভারতবর্ষে করে বেড়াচ্ছো সেই নাটকের নামগুলো আরেকবার করে সবাইকে একটুখানি জানিয়ে দাও যে কতগুলো থিয়েটার তুমি অলরেডি তৈরি করে ফেলেছো। আর অডিয়েন্স থেকে একটা কোশ্চেন আছে যে বাইরে কাজ করতে মানে অল ওভার ইন্ডিয়ায় কাজ করতে গিয়ে প্লে নিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম কিছু হয় কখনো কমিউনিকেশনের? हाँ, माने शुरू में जो हमारा लैंग्वेज है, असमिया लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज बहुत मिलजुल, और थिएटर स्टाइल में भी बंगाली या बंगाली स्टाइल बहुत है या बंगाली स्टाइल है। माने फॉर्मेट जो असम का जो थिएटर फॉर्मेट है वो बंगाली का फॉर्मेट सेम है। तो इंडिया में शुरू शुरू में हम लोगों को बोलते थे कि आप लोग क्या बंगाली लोग बंगाली थिएटर ऐसा बोलते थे। तो हम लोगों ने माने आंसर में बोलते थे कि नहीं हम असमीज। अच्छा असमीज एक जैसा लगता है ऐसे बोलते थे। तो बाद में नहीं, बाद में जब हम थिएटर खड़ा किया रिसर्च करके तो उसके बाद हाँ आसाम का है, क्योंकि बंगाली थिएटर का साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, हमारा जो फॉर्म है। तो मतलब मेरा दिमाग में ये शुरू से था कि अगर हम थिएटर करेंगे सिर्फ असम का लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए हम थिएटर करेंगे। तो इसीलिए अगर लैंग्वेज मालूम नहीं है तो फिजिकल लैंग्वेज से या फिजिकल मूवमेंट से उन लोगों को मालूम हो जाता है कि स्टेज पे क्या हो रहा है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ, माने कभी नहीं हुआ कि सब ऑडियंस माने कॉमन ऑडियंस भी उनका भी मालूम हो जाता था कि दरअसल स्टेज पे क्या हो रहा है, प्ले का कंटेंट क्या है, ये क्या बोल रहा है।
तो इसीलिए मेरा ये समस्या नहीं है। मैं इंडिया का हर स्टेट में हम प्ले कर माने सक्सेसफुली हमारा थिएटर सक्सेसफुल होता है। শিলাদিত্য, শুভজিৎ, কোনো কোশ্চেন আছে স্যারকে? मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने आपका नाटक देखा है 2017 में विराल तपस्वी, तो हर कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया था। मुझे ये जानना है कि आपका एक्टर को आप कैसे मोटिवेट करते हो? वो एक्टर को मोटिवेट करने के लिए, एक्टर को सही ट्रैक पे लाने के लिए आपका प्रोसेस क्या है? आवाज ठीक से आया नहीं, क्वेश्चन मैंने सुना नहीं ठीक से। हाँ बोलिए। हर कोई व्यक्ति का अपना खुद का नजरिया होता है, आपका भी थिएटर का एक नजरिया होता है, तो एक्टर को वो ट्रैक पे लाने का आपका प्रोसेस क्या है? हाँ मैंने मेरा जो फॉर्म है वो दरअसल मैं सब नया लोगों को जोड़ने में मुझे अच्छा लगता है, और इसीलिए हम लोग जब नया लोग आता है वही थिएटर समझते हैं कि ठीक है, तो वही उस रास्ता पे चलने के वो मजबूर हो जाता है एक। और जो हमारा जो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज हम शुरू में या प्ले का आगे आगे रिहर्सल का आगे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज देते हैं, वो एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आ जाता है। पहले उनका दिमाग में वो नहीं आते है कि अरे चूहा बनना, बिल्ली बनना, ये कोई नाटक होगा क्या? वो तो राजा महाराजा या कोई वकील, ऐसा जो कन्वेंशनल जो कैरेक्टर होता है उसका वो दिमाग में लेके आता है। जब ये मुर्गा बनना पड़ता है, हाँ तो मिट्टी में लेटना पड़ता है, तो पहले तो उसका दिमाग में पूरा तोड़छाड़ होता है कि हम इस फिल्म में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और मैंने भी पूरा टाइट करके रखा, मतलब टाइट करके एक्सरसाइज देते हैं कि अगर भागना है तो भाग जाओ और रहना है तो रह जाओ। तो धीरे धीरे वो एक्सरसाइज, म्यूजिक और बातचीत करते 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 धीरे धीरे मेरा ट्रैक पे वो आ जाता है। রাজস্বী, কিছু কোশ্চেন আছে? রাজস্বী, নেটওয়ার্কে একটু সমস্যা হচ্ছে। মোবাইলটা প্রশান্তরা কিছু বলুন। হ্যাঁ রাজস্বী। হ্যাঁ, বলছি যে স্যারকে একটা জিনিস, মানে सर के लिए एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो। হ্যাঁ বল। हाँ हाँ हाँ, जो ये दो, मतलब लास्ट जो 2 साल हमने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, ये जो पैंडेमिक और कोरोना को लेके, ऐसी सिचुएशन तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा आने वाला है या ऐसा आ सकता है। तो इससे थिएटर का कंटेंट में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? आपको क्या लगता है सर? हाँ, अभी तो पूरा न्यूट्रल में है ये थिएटर। क्या नहीं करेंगे हम, पुराना ट्रैक पे जाएंगे या कहीं नया ट्रैक ढूंढेंगे, ये मेरे ख्याल से ये पूरा एक माने एक फुल स्टॉप लग गया है। अभी लोग सोचने लगा है क्या करेंगे,
अभी तक तो एक मोड़ पे आके रुक गया है थिएटर। अगर और ज्यादा दिन और ज्यादा साल ये कोरोना रहेगा तो थिएटर का ऊपर डेफिनेट और कंटेंट हो या परफॉर्मेंस स्टाइल, स्पेशली कंटेंट में तो नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल में और चेंजिंग होगा। माने तो मेरा ख्याल से अभी तो अगर फ्लेक्सिबल होगा, अगर ये कोरोना हट जाएगा 26 में तो अगर कोरोना नहीं होगा तो थिएटर पुराना ट्रैक पकड़ लेगा फिर। और एक ये बात, जो लाइफ देखने का जो टेंडेंसी लोगों का, जो वैल्यू, जो डिमांड, वो माने वो रहेगा ही। लाइव जो थिएटर का जो वैल्यू है, लाइव जो देखने का, मान लीजिए आप फुटबॉल हम टीवी पे देखते हैं लेकिन फुटबॉल ग्राउंड पे आते हैं तब हम घुस जाते हैं उसका ऊपर, थिएटर का कि फुटबॉल का ऊपर। ऐसे ही जो लाइव चीज है ना, तो वो लाइव हरदम जो पैरामिक है उसका प्रभाव है। अगर ये ज्यादा दिन रहेगा तो थिएटर ही चेंज होगा प्रेजेंटेशन में, सोलो परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। मेरा अभी तो मुझे मालूम नहीं कैसा मोड़ लेगा, कैसा रास्ता पकड़ लेगा, लेकिन अगर कोरोना खत्म हो जाएगा तो वो पुराना रास्ता पकड़ के चला जाएगा। শিলাদিত্য কিছু জিজ্ঞাসা করছিলে? শিলাদিত্য, নেটওয়ার্কের একটা সমস্যা হচ্ছেই, আটকে যাচ্ছে। সকলের কাছে আমরা আবার জানাচ্ছি যে অসীম নাগ আসামের সরসা দলের কর্ণধার, তার সঙ্গে আমরা অলরেডি 1 ঘন্টা কথাবার্তা বলতে থাকলাম, মানে 1 ঘন্টা হয়ে গেল কখন বুঝতেই পারলাম না। প্রশান্ত দা কিছু বলবে? হ্যাঁ, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে এই সারসার ফান্ডিং কি করে হয়? মানে প্রোডাকশন কস্ট বলুন বা এই ছেলে মেয়েদের একটা দল চালাতে গেলে যা যা খরচা লাগে, তাদের খাওয়া দাওয়া, রিহার্সাল খরচা, রিহার্সালের খাওয়া খরচা, দলের কস্টিউম, নাটকের কস্টিউম, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন যে জীবন যাপনের জন্য ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটা কি? তারা কি শুধুই থিয়েটারটা করছে আপনার দলের অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা, নাকি জীবনযাপনের জন্য অন্য কোনো পেশার সঙ্গেও যুক্ত আছে, সেখান থেকে তারা তাদের জীবনযাপন করছে, বাকিটা এসে থিয়েটারটা করছে? शुरू में हमारा ग्रुप का फाइनेंशियल सिचुएशन था तो वो पब्लिक फंड है, हम कंट्रीब्यूशन लेते थे। तो में जो मेरा एरिया है वो एरिया है वो लोग অসীম স্যার, ভিডিও অফ हो गया? वो लाइट का प्रॉब्लम हुआ है इसलिए। সুজিত আরেকবার বলে। हाँ सर, হ্যাঁ, নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে, নেটওয়ার্কের প্রবলেম। हाँ हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ तो थोड़ा जो पब्लिक नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। शुरू में तो पब्लिक
पब्लिक में मुझे कंट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद मैं जो फेस्टिवल करता हूँ उसी पैसा से मैं ग्रुप चलाता हूँ। और प्रोडक्शन गेन भी था, लेकिन सैलरी गेन नहीं है मेरा, मैंने अप्लाई किया नहीं अभी तक, और शायद हम नहीं अप्लाई करेंगे। इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन गेन थे वही मुझे मिला, ग्रुप प्रोडक्शन मैंने अप्लाई किया नहीं। और जो दरअसल जो फेस्टिवल में जो मेरा पैसा आता है उसी से ही हम प्ले खड़ा करते हैं, उसी से ही हम चलते हैं, क्योंकि प्ले से मैंने बहुत सारा अर्न किया और उसी से ही हम लोग चलाते थे। ये बात जो आर्टिस्ट है वो लोग प्योरली थिएटर ही करते हैं, प्योर, माने वो दूसरा काम पे नहीं जाते हैं, वो थिएटर ही करते हैं। अगर थिएटर नहीं करते तो कैमरा पे जाते हैं या कोई दूसरा ग्रुप का साथ हम दूसरा ग्रुप का साथ काम करते हैं और मेरा साथ काम करते हैं। तो दूसरा काम पे या कोई नौकरी वाला कोई बिजनेसमैन हम नहीं लेते हैं, हम एकदम बिल्कुल नहीं लेते हैं। अगर नौकरी है तो नौकरी करो, अच्छा से करो, और बिजनेस है तो बिजनेस करो, क्योंकि मेरा थिएटर जो है एक्सरसाइज करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, दिन रात, सुबह से रात तक, रात से सुबह 24 आवर्स देना पड़ेगा। तो जो अदर प्रोफेशन में जो रहते हैं वो लोग ठीक है। हाँ, हेलो, হ্যাঁ ঠিক আছে। हाँ सर। हाँ थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ, वो माने नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मगर असीम तुमको बहुत बहुत बधाई। আমাদের প্রেসিডেন্ট মানে কথক পারফর্মিং রেপার্টরির যিনি প্রেসিডেন্ট সবার বড় ডক্টর কৃষ্ণমোহন মজুমদার, উনি ধন্যবাদ জানিয়েছে তোমাকে আমাদের সাথে এইভাবে সহযোগিতা করার জন্য। আর আর একটা কথা হচ্ছে যে তুমি যেভাবে থিয়েটার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ, আমাদের অসংখ্য অসংখ্য সহযোগিতা তোমার সঙ্গে থাকবে। তুমি এইভাবেই তোমার থিয়েটার নিয়ে এগিয়ে চলো। পুচকিটাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। পুচকিটার নাম কি রেখেছো অসীম, একটু আমাদের সবাইকে জানাও। अब तक नाम नहीं रखा है। अभी तक नाम नहीं रखा है। भाभी को এবং সরসা পরিবারকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনাদের সকলকেও অনেক ধন্যবাদ। অসীম নাগ জানেন সরকার বিশিষ্ট কর্ণধার নাট্য জগতে, ও এখনই একজন দিকপালের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। আমরা আশা রাখবো যখনই ও বাংলায় আসবে আমার বাংলার সকলে থিয়েটার দেখবেন, এবং আমরা তো আছি। আপনাদের আর কারণ যে সমস্ত কিছু প্রশ্ন থাকছে সেগুলো আমরা এখনই আনতে পারছি না সময়ের অভাবের জন্য। শুধু অসীমের কাছে একটু অনুরোধ, অসীম পরে একটু কোশ্চেন লিস্টটা দেখে নিয়ে তুমি একটুখানি বলে দিও ওদেরকে, ওদের যা কোশ্চেন আছে তোমার কাছে সেই উত্তরগুলো দিয়ে দিও। আমরা আজকে এখানে এইভাবেই শেষ করছি। আগামী মাসের 20 তারিখ
প্রত্যেক মাসের মতোই যাপনের কথা হবে, অন্য কারোর সাথে আমরা কথা বলবো। কিন্তু যদি এরকম বড় কোনো বিঘ্ন ঘটে, মানে কালকে যে দুর্যোগ গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের উপর দিয়ে, কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি হয়ে গেছে, সেরকম কিছু হলে তখন আমরা বাধ্য হবো ডেটটাকে এদিক ওদিক করতে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যাতে 20 তারিখটা 20 তারিখই থাকে, অন্য কোনো দিন না হয়। এতক্ষণ আমার সঙ্গে যারা ছিলেন তারা হচ্ছে রাজর্ষি চক্রবর্তী, শুভজিৎ মল্লিক, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, শিলাদিত্য বড়াল এবং আমাদের আজকের অতিথি অসীম নাগ। আর কারিগরি সহযোগিতা করেছে সুমিত শ্রেষ্ঠা। ধন্যবাদ। অসীম কিছু বলছো আর কিছু मैंने বলবো? भी सब लोगों को थैंक यू बोला है। हाँ हाँ, मैंने जो मैंने बात किया आप लोगों के साथ बात करके मुझे भी अच्छा लगा। और जो एक घंटा क्रॉस कर दिया, मैंने सोचा था हम क्या जवाब देंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन करते करते टाइम गुजर गया। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। शुभजीत बात किया, मैंने मैंने 2-3 दिन से, क्योंकि वो जो मेरा मेडिकल पार्ट था इसमें मैंने बहुत बिजी था, आप लोगों का साथ कंटेक्ट नहीं कर पाया या कम्युनिकेशन हमने नहीं कर पाया। तो फिर भी ये काम हुआ है, अच्छा हुआ है। और आप लोग ऐसे ही थिएटर पे लगे रहे और हम भी आप लोगों का साथ है। और हम माने आशा करते हैं कि कथक परफॉर्मिंग आर्ट एक अच्छा रास्ता से जाके एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे। तो नया जो थिएटर लोग हैं, आप आइए, थिएटर पे जुड़िए और अच्छा से रहिए। হ্যাঁ, এখানেই শেষ হলো। হ্যালো, আজকের মতো যাপনের কথা পর্ব 3 এখানেই আমরা শেষ করছি। আগামীকাল আমাদের কটক পরিবার রওনা দিচ্ছে উড়িষ্যায় কোরাপুটে নান্দনিক অর্থাৎ সৌরভ গুপ্ত আমন্ত্রণে ষষ্ঠ দেওমালি জাতীয় নাট্যোৎসবে আমাদের প্রযোজনা খুড়িমা মঞ্চস্থ হবে আগামী 24 তারিখ। কাছাকাছি বন্ধুদের এবং সকল নাট্যমোদী দর্শককে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি নাটকটি দেখতে আসার জন্য। যাপনের কথা পর্ব 3 আলাপচারিতায় ছিলেন শ্রী অসীম নাথ মহাশয়, সরসা, আসাম। আমরা খুব শিগগিরই সবাইকে জানিয়ে দিতে পারছি যে আমাদের আগামী 20 তারিখে কে থাকছেন যাপনের কথা পর্ব 4। সবাই ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, থাকুন থিয়েটারে। নমস্কার।